نحمده ونستعينه ونستغفره ونمرته ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں آپ کو اور تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور بے صحابہ و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سب کی رسول تشریف لائے. ساتھیوں ابھی جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گئے. یہ آیت قرآن کی میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے اور یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے احکام ہم پر نازل کیے تھے جو ہم تک پہنچائے تھے وہ ہم نے تم لوگوں تک پہنچا دیے. جن جن باتوں کے کرنے میں ثواب تھا وہ بتا دیا گیا اور جن باتوں کے کرنے میں گناہ تھا وہ بھی بتا دیا گیا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے تمام باتیں ہم لوگوں تک پہنچا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت فوقت نازل ہوتا رہا اور جب دین کی ساری باتیں کمپلیٹ ہو گئی روزہ نماز حج اور دوسرے جو بھی عبادات کی جن جن باتوں کے کرنے میں ثواب تھا جن کو ایک مسلمان کو قیامت تک کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کر کے بتا دیا. صحابہ کرام کو حکم دیا صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا اور اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور جن جن باتوں کے کرنے میں گناہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرا دیا امت کو ڈرا دیا کہ ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہوگا. بدعات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں نے خود سنا پڑھا ہے شر الامور محدثاتها كل محدث بدعۃ كل بدعۃ ضلالہ اور كل ضلالۃ فی النار. شریعت میں ہر نئی بات کی ایجاد بدعت ہے بدعت گمراہی ہے گمراہی کا راستہ جہنم کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے تعلق سے بھی اپنی امت کو ڈرا دیا. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام صحابہ کرام کے ذریعے عرب سے آگے گیا گلف کنٹریز میں عرب کنٹریز میں وہاں پر آج بھی اصلی اسلام باقی ہے. وہاں پر کوئی شرک بدعت و خرافات نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں پر اسلام صحابہ کرام کے علاوہ اوروں کے ذریعے آیا جیسے کہ ہندوستان بر صغیر میں ایران سے چلتا ہوا افغانستان کے راستے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے پہنچا تو یہاں پر جو مسلمان ہوئے وہ جو اپنے پرانے دین پر تھے پرانے رسم و رواج پر تھے جو کچھ کرتے تھے اس کے ساتھ شامل ہوئے. ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث ضرور لکھتے ہیں کہ 1300 صدی ہجری تک کوئی حدیثی کتاب یہاں ہندوستان میں موجود نہیں تھی. قرآن کا ترجمہ موجود نہیں تھا.
जो मौलवी कहता लोग उसी को दीन मान लेते थे। 1327 में शवल मोहतजली रहमतुल्लाह अलैह गए हज करने के लिए, तो वहां से हदीस की किताबें लेकर के आए। उन्होंने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा फारसी में किया, जो लोगों के बीच में आया। यहाँ के मौलवियों ने उनको कुफर का फतवा लगा दिया कि ये कुरान को बदल रहे हैं। बहरहाल लोगों ने धीरे समझना शुरू किया, लेकिन बहुत सी रस्म रिवाज अभी भी हमारे बीच में बाकी हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत सी बिदातें ऐसी हैं जिनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है और अक्सरियत मुसलमान की उसको कर रही है। शबरात का महीना आएगा तो भाई शबरात का हलवा बनेगा, शब कदर की जाएगी। रजब का महीना आएगा तो रजब के कूल्हे होंगे। मुहर्रम में क्या क्या खुराफातें होती हैं, खिचड़ा और कहीं मलिदा और पता नहीं क्या क्या, वो सब आप सब जानते हैं। हम सब लोगों ने देखा, बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। यही रजब का महीना, इस महीने में भी कुछ बिदातें हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बिदात है वो है रजब के कूल्हे। हमारे सुन्नी भाई जिनको चाहिए तो ये था कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पढ़ते और समझते और उसके बाद उस पर अमल करते, लोगों के पहचावे में आकर लोगों की मनगढ़ंत बातों में आकर के उन्होंने बिदातों को इजाद किया, उसको अमल भी किया और ये बिदातें बहुत जोर शोर से फैली। लेकिन अल्लाह का फजल है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 10-5 साल में 30 साल में बिदातों को करने वाले कम हो रहे हैं। आप लोग अपने आप को अगर देख लें तो 10-5 साल पहले की देखें तो हमने खुद बचपन में 25 साल पहले बहुत कुछ किया है, रजब कूल्हे भी किए हैं। हमारे घर खानदान में होता था तो हमने भी किए थे। लेकिन जब सऊदी अरब गए और वहां पर जब देखा कि इस्लाम जहाँ पर नाजिल हुआ और जहाँ पर ये रजब कूल्हे नहीं कोई मनाता है, क्यों नहीं मनाता है, ये हमारे से बात है। इसकी तहकीक की कि आखिर क्या वजह है। एक आलिम साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप ये तलाश कीजिए कि कुरान और हदीस में क्या इसका कोई सबूत है। अगर सबूत है तो फिर ये सऊदी नहीं करते तो ये गलती पर है, और अगर सबूत नहीं है तो जो कर रहा है वो गलती पर है। और वाकई में जब कुरान का मुताला किया, तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ा, हदीस रसूल को पढ़ा, बुखारी, मुस्लिम, बताओ, तिरमिज़ी, निसाई, हमारे तमाम हदीस जो मौजूद है उनको जब पढ़ा तो कहीं नजर खुलने कोई जिक्र नहीं है। और जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी इजाद बहुत बाद में हुई है, बहुत बाद। इसको पूरा हवाला इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। रजब के कूल्हे जो लोग बनाते हैं वो किस तरह से मनाते हैं, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। और क्यों मनाते हैं उस रोशनी डालेंगे, फिर वो तारीखी एतबार से और शरीयत के एतबार से वो गलत है, इसकी वजाहत भी आपके सामने हम करेंगे। कूल्हे बनाए जाते हैं कि एक कमरे के अंदर चादर बिछाकर हलवा पूरी टिकिया वगैरह बना के रखी जाती है और लोगों को बुला के लाया जाता है कि आप लोग आइए यहाँ बैठ के खाइए। लोग जाते हैं, वहां पर बैठ के खाते हैं उसको। और वहीं पर नाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह के नाम की न्याज होती है, उनके नाम पर फातिहा होती है, और वहीं पर बैठ के लोग खाते हैं। फिर एक घर से दूसरे घर लोग जाते हैं, वहां बैठ के खाते हैं। इस तरह से ये कूल्हों की टिकिया बनाने का तरीका है। और मनाते क्यों हैं, इसके लिए शरीयत में कोई दलील नहीं है, तारीख में कोई दलील नहीं है। सबसे पहले एक किताब दास्ताने अजीब के नाम से रामपुर के नवाब के जमाने में वहां पर लिखी गई और उस किताब को आम किया गया 1906 ईस्वी में, और 1911 ईस्वी में लखनऊ में इस किताब को बांटा गया और उसके बाद ये कूल्हे बनाए गए। उस किताब में जो किस्सा लिखा गया है, उस किताब का किस्सा जो आपको बहुत बता दें, बहुत से लोग कूल्हे की टिकिया पकाते हैं, मनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे कहानी क्या है, उनको नहीं पता है, और असल हकीकत क्या है इससे तो बिल्कुल बेखबर है। तो आइए मैं आपको एक इस कहानी के बारे में बताता हूँ कि उस किताब में जो कहानी लिखी है कि ये इस दौर की बात है कि जब इमाम जाफर सादिक हयात में थे, इनके दौर में मदीना में एक लकड़हारा रहा करता था जिसके बहुत से बच्चे थे और आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे, इसलिए उससे खर्चे नहीं पूरे होते थे। तो उसने सोचा कि चलो कहीं बाहर से करके कुछ कमाते हैं। वो बाहर कमाने के लिए गया तो 12 साल तक घर वापस नहीं आया, उसकी कुछ आमदनी नहीं हुई। लकड़हारे की बीवी कुछ घर में कुछ आमदनी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो उसने बच्चे के घर पे नौकरी कर दी। वहां पर वो झाड़ू लगाती, जो पैसे देते उसे बच्चों का पेट पालती। एक दिन वो झाड़ू दे रही थी वजीर के शहर में,
تو وہاں سے امام جعفر صادق کو کچھ مریدوں کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا امام جعفر صادق کو وہاں پر رکے اور اپنے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم کو پتا ہے کہ آج کون سا دن, کون سی تاریخ, کون سا مہینہ ہے؟ تو ایک مرید کو بتایا کہ آج 22 رجب ہے. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کیا تم اس کی حدیث کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور کیسا جانتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ آج 22 رجب کے دن جو حلوہ پوری ٹکیا بنائے اور میرے نام کی نظر کرے, پھر وہ میرے وسیلے سے اللہ سے جو مانگے گا اس سے ملے گا, اور اگر نہ ملے تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے. یہ جب انہوں نے کہا اور کہہ کر چلے گئے تو لکڑہارے کی بیوی نے یہ سن کر وہاں پر اپنا کام چھوڑا اور سیدھے اپنے گھر گئی. اس نے ٹکیا بنائی, حلوہ پوری بنائی اور ایک چادر بچھا کر کے وہاں پر امام جعفر صادق کے نام کی نیاز دلائی. پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی کہ ہم کو دولت خود مل جائے, ہمارا شوہر واپس آ جائے. تو ادھر نیاز دلانا تھا پورے کرنے کی وجہ سے لکڑہارے کو زمین میں گڑا ہوا ایک بڑا خزانہ مل گیا اور وہ گھوڑوں پر, اونٹوں پر اس خزانے کو لا کر کے واپس اپنے گھر آ گیا, مدینہ آ گیا اور ایک بہت بڑا عالیشان محل بنایا, اس میں رہنے لگا. جب وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک گھر بنا ہوا, ایک محل بنا ہوا ہے, اس نے خداموں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس لکڑہارے کی بیوی کا ہے جو آپ کے وہاں کام کرتی تھی, جھاڑو لگاتی تھی. تو انہوں نے لکڑہارے کی بیوی سے بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, اتنا بڑا محل تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق کے نام کی نیاز دلائی تھی اور ان کے وسیلے سے دعا کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو, ہمارے شوہر کو خزانہ عطا کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم بہت امیر ہو گئے. وزیر کی بیوی نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو, ضرور تمہارے شوہر نے کہیں ڈاٹا ڈالا ہے, کہیں سے لوٹ پاٹ کی ہے اور یہ پیسہ لے کر کے آیا ہے اور نام تم دے رہے ہو امام جعفر صادق کے کنڈے کی. یہ کہنا تھا کہ اب اس کہانی میں ایسا کرایا گیا ہے کہ ایک کمزور ایمان والا انسان جلدی سے ڈر جائے. اب وزیر کی بیوی نے جب انکار کیا تو غیب سے اس کے اوپر مصیبت آ گئی. وزیر کے اوپر غبن کا الزام لگا اور اس کے بعد وزیر کو برطرف کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم ہمارا ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ. ملک پتہ کر دیا گیا, فیملی کے ساتھ نکل جاؤ. وزیر اپنی بیوی کو لے کر کے چلا اپنا سامان باندھ کر کے, تو اس کے پاس اس کا بچے کو چپ کرا گیا. جب وہ چلا تو راستے میں اس نے خربوزہ خریدا, اپنے رومال میں باندھ لیا کہ جو بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. اسی دن بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شکار کھیلنے گیا تھا, وہ واپس نہیں آیا. جو واپس نہیں آیا فکر ہوئی. لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ اس وزیر نے آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا ہو یا مار دیا ہو, کیونکہ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور ان کو کیسے پکڑایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ وزیر کو. جب وزیر کو پکڑ کے لایا گیا تو دیکھا کہ رومال میں جو کچھ بندھا تھا, پوچھا کہ تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ تو جب رومال کھولا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں شہزادے کا سر. بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو پاڑ دیا, تم کو کل پھانسی دی جائے گی. سپاہیوں سے کہا جن کو جیل میں ڈال دو اور صبح ان کو پھانسی دے دینا. رات میں وزیر کی بیوی اور وزیر دونوں کہنے لگے کیا ماجرا ہے, ہمیں بادشاہ کو اس کے بیٹے کو مارا بھی نہیں, یہ سر ہمارے رومال میں کہاں سے آ گیا؟ تو وزیر کی بیوی نے کہا ضرور یہ ہم نے جو امام جعفر صادق کے کنڈے کو نہیں مانا ہے اس کی طرف, اس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے, غیر سے پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اگر ہم لوگ کنڈے کو مان لیں شاید پریشانیاں دور ہو جائیں. تو ان دونوں نے, وزیر ان کی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ ہم جو امام جعفر کے کنڈے منائیں گے, اگر ہم یہاں سے صحیح سلامت نکل گئے تو ہم پوری زندگی کنڈے بنائیں گے. یہ ان کا ماننا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو شکار کرنے گیا تھا وہ رات واپس آ گیا, صحیح سلامت آ گیا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بیٹے کا تو تمہارے رومال میں تھا, پھر رومال پھیلا گیا تو اس میں خربوزہ تھا. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وزیر اور اس کی بیوی نے بتایا کہ لکڑہارے نے جو پوجے کے تعلق سے بتایا تھا اس سے ہم ایمان نہیں لائے تھے, اس کو ہم نے نہیں منایا تھا, اس لیے ہم پر غیب سے مصیبت آئی تھی. اب رات کو ہم نے مان لیا کہ ہم بھی پوجے بنائیں گے تو یہ مصیبت دور ہو گئی. تو بادشاہ نے کہا
हम भी छोटे मनाएंगे। ये वाकया एक कहानी लिख करके लोगों के बीच में किताबों की शक्ल में बांटी गई 1906 में रामपुर में। जब जिसको लोगों ने पढ़ा तो अब वगैरह के कमजोर ईमान वाले लोग ये कहने लगे कि ये जो नहीं मनाएगा वो तो परेशानी में मिल जाएगा, और जो मनाएगा वो मालामाल हो जाएगा, तो क्या हर्ज है, मना लेते हैं। तो लोग रामपुर में मनाने लगे, फिर लखनऊ मनाने लगे, फिर धीरे पूरे हिंदुस्तान में ये चीज फैल गई। ये वाकया झूठा है, इसके चंद दलाइल हम आपको देते हैं। इसमें इमाम जाफर सादिक ने ये बात कही, झूठी बात है, उन्हें नहीं कही, लेकिन जो कहानी में कही जा रही है, इमाम जाफर सादिक ने कहा कि अगर मेरे वजह से दुआ मांगो और ना कोई बात पूरी हो तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ लेना। हम सब जानते हैं, अल्लाह का फजल है, हम सब हदीसों को पढ़ते हैं। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी और कई और लोगों को मुखातिब करने के बाद अपनी बेटी फातिमा से भी कहा था कि ऐ बेटी फातिमा, इस दुनिया में जो कुछ चाहिए हमसे दे लो, क़यामत के दिन में तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। हज़रत अली हो, इमाम हसन हो, कोई भी हो, इन लोगों ने भी कभी इस तरह से दावा नहीं किया कि अगर मेरी वजह से कोई बात न पूरी हो क़यामत के दिन, क़यामत तो सारे लोग कर रहे होंगे। हम लोगों ने उस वाक्य को पढ़ा हुआ है, मैदान महशर का जो दिन होगा, जब आदम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि मैं अल्लाह के सामने जाने से डरता हूँ। फिर इब्राहिम के पास जाए, इब्राहिम पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं डरता हूँ। मूसा के पास जाओ तो वो कहेंगे इनके पास। आखिर में मुझे के पास आएंगे और वो सिफारिश करने जाएंगे, बल्कि सजदे में गिरते सब डर रहे होंगे, सब कांप रहे होंगे। फिर अंबिया ने फरमाया है कि क़यामत के दिन होगा, अंबिया और फरिश्ते सब के सब अल्लाह के खौफ से लरज़ा तरसा होंगे, सब कांप रहे होंगे। क्या मजाल इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की कि वो ये बात कहे, वो नहीं कह रहे हैं, ये झूठे लोगों ने जो कहानी लिखी है उसमें ये बात लिखी है। इमाम जाफर सादिक बिन समद बाकर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत हसन बिन हज़रत अली, यानी हज़रत अली के चौथी औलाद में से इमाम जाफर सादिक है। ये जो नाम मैंने लिए हैं, ये सब के सब जो शिया हजरात हैं, जो जिनकी वो 12 इमाम हैं, उनमें से ये इमाम है, और इमाम जाफर सादिक उनको 12 इमामों से एक इमाम मौजूद है, इससे उनकी पूरी सवाल है उनके पास हम लोगों से बेहतर मौजूद है। उनकी पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 हिजरी यानी 24 मई 699 ईस्वी है, और वफात मदीना में 15 शव्वाल 148 हिजरी यानी 765 ईस्वी में हुई। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश और वफात के हवाले से। ये हवाला जो है शिया की जो किताब है 14 सितारे नजर हुसैन करावी की सफा 25 और 26 पर, और इस्लामी साइक्लोपीडिया सफा 125 पर यह बात मौजूद है। 68 साल की उम्र पाई इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने, 68 साल की उम्र पाई। इमाम जाफर सादिक के वक्त में बादशाहत नहीं थी, जैसे कि कहानी में कहा गया कि मदीना में लखहरा था, वहाँ वजीर था, एक बादशाह था, ये कहानी है ना। तो कहानी छोटी होने की दूसरी कड़ी सबसे बड़ी क्या है कि 68 साल की उम्र रही, 80 हिजरी से 148 हिजरी के बीच में इमाम जाफर सादिक की हयात थी। उनके वक्त में इन जो 68 साल की जिंदगी पाई है, इन 68 साल की जिंदगी में कोई बादशाह नहीं हुआ करता था, बल्कि खलीफा हुआ करते थे, और अब्दुल मलिक बिन मरवान और अबू जाफर मंसूर इस दौर के खलीफा थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान और अबू जाफर मंसूर जो थे वो इस दौर के खलीफा थे। इस दौर में खिलाफत अब्दुल मलिक बिन मरवान से लेकर अबू जाफर मंसूर तक है। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में खिलाफत जो थी वो दमिश्क थी, मदीना नहीं थी, और मंसूर अब्बासी के दौर में जो दारुल थी वो बगदाद में थी, यानी मदीना में कोई बादशाह नहीं था। तो ये कहानी अपने आप झूठी हो गई जो दो बादशाह के हवाले से बयान की गई है। इमाम जाफर की जिंदगी में मदीना मुनव्वरा में कोई बादशाह या वजीर नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त खलीफा हुआ करते थे, और खिलाफत जो थी वो दमिश्क और बगदाद में थी, तो मदीना में कोई बादशाह नहीं थी। 22 रजब इमाम जाफर सादिक की पैदाइश का दिन नहीं है, और न ही वफात का। फिर हदीस में भी इस 22 रजब के ताल्लुक से कोई फजीलत नहीं मिलती है। तो क्या वजह है इस कहानी को गढ़ने वालों ने 22 रजब की तारीख को चुना? अब ये बात सुनने वाली है आप लोगों को कि ये 22 रजब के कुंडे क्यों मनाए थे। जबकि इमाम साहब की पैदाइश से लेकर 1300 सदी हिजरी तक किसी ने कुंडे नहीं मनाए, किसी किताब में इसका जिक्र नहीं मिलता है। पीर हिमायत अली शाह की एक मुरीद है मुस्तफा अली खान,
उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है जवाहर मुनासब। इसमें लिखा है कि कुंडों की शुरुआत 1906 में रियासत रामपुर यूपी से हुई और एक मशहूर शायर अमीर मीनाई गुजरा है, इसके बेटे खुर्शीद अहमद मीनाई ने दास्तान अजीब के नाम से कुंडों के बारे में किताब छपवा कर 1906 में तकसीम करवाई। फिर 1911 में ये किताब लखनऊ और आसपास के इलाकों में बांटी गई। कमजोर ईमान वालों ने जब किताब पढ़ी तो मुसीबत में घिरे लोगों ने ईमान न लाने पर मुसीबत को पड़ जाने के खौफ से लोगों ने कुंडे भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये बिदात यूपी से पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क था। बड़े सगीर के अलावा सुन्नियों में से किसी ने इस बिदअत को नहीं अपनाया है। हाँ, शिया इस दिन को खुशी का दिन 22 रजब 60 हिजरी से मनाते आ रहे हैं। 22 रजब कब से? 60 हिजरी से मनाते आ रहे हैं। शिया 22 रजब को 60 हिजरी से ये मनाते आ रहे हैं खुशी का दिन। हलवा पूरी टिक्कियां बनाते हैं और आपस में खुशियां मनाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? नाम सुना है हम सब लोगों ने, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिबुल वही थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में साले लगते थे। हजरत अली के जमाने में शाम के गवर्नर थे। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर बने, लेकिन चंद महीने के बाद उन्होंने खुद अमीर माविया से दरख्वास्त की कि वो इमामत संभाल लें। उनको मैं सिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस लायक हैं कि आप अमीर मुमिनीन बने। अमीर माविया से दरख्वास्त की इमाम हसन ने। अमीर माविया ने अपने जब वो अमीर बन गए तो 19 साल 3 महीना और 27 दिन अमीर रहे। 19 साल 3 महीना और 27 दिन अमीर रहे। हम लोग जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रसूल के जमाने से जितने शुरू हुए थे उनको शहीद किया गया मस्जिद नबवी में। उसके बाद मदीना से दारुल अपना कूफा बनाया हजरत अली ने और वो अमीरुल मोमिनीन रहे और आखिर में उनको भी शहीद किया गया। कूफा की एक मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त उनको भी शहीद कर दिया गया। ये सारे हिजरे जो थे ये शिया राफी मुनाफिक लोगों के थे और हजरत हसन जानते थे कि अमीर माविया बहुत ही जाबाज हैं, ये ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों का ड्रो कर सकते हैं। तो इमाम हसन ने खुद दरख्वास्त की थी अमीर माविया से कि आप अमीर बन जाएं। जब वो अमीर बने तो अमीर बनने के बाद वो 19 दिन 3 महीना 27 दिन तक अमीर रहे और इन तकरीबन 20 साल का जो वक्त गुजरा, इन 20 सालों में कोई भी सेक्रेटरी अपना सर उठा के बात नहीं कर सकता। जिसने भी सबको बहुत अच्छी तरह संभाला, सबको सभी करके रखा था। कोई शिया राफी सर उठा के बात नहीं कर सकता था। सब छुप छुप के अपने काम करते थे, लेकिन खुला खुला कोई काम करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। शिया अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वो अमीर माविया से बहुत परेशान थे। फिर जब 22 रजब दिन जुमेरात 60 हिजरी में अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो सारे शिया बहुत खुश हुए। 20 साल तक 19 साल 3 महीना 27 दिन तक जो सब नहीं उठा सके थे, जब अमीर माविया का इंतकाल हो गया तो शिया बहुत खुश हुए कि आज हमको राहत मिली है। इतने सालों से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज ये इंतकाल हो गया है तो अब हम लोग खुशी का दिन मनाएं। उन शियों ने अपने घर पर हलवा पूरी बनाई और उस दिन को अपनी खुशी का दिन मुकर्रर कर लिया। ये कहा कि आज से हम लोग इस दिन को अपनी खुशी का दिन मनाएंगे। क्योंकि अमीर माविया के बाद उनके बेटे यजीद ने इमारत संभाली थी, इसलिए शिया खुलकर खुशी मना नहीं सकते थे। आपको बता दें कि अमीर माविया का जब आखिरी दौर था तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा वक्त करीब है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरा इंतकाल हो सकता है। तो कुछ जो दौर के सहाबा थे उनको बुला करके मशवरा किया कि मेरे बाद कौन ऐसा हो जो इमामत संभाले, यहाँ आप लोगों का अमीरुल मोमिनीन हो, जो लोगों को किसी तरीके से चला सके, कंट्रोल कर सके, इन फितनों को भी कंट्रोल कर सके। तो सहाबा कराम जो उस वक्त हयात में थे और जो उनके और दूसरे जो मुशीद थे उन लोगों ने मशवरा ये दिया कि आपके बेटे यजीद जो हैं वो सिपह सलार हैं, फौज के कमांडर हैं, जाबाज हैं, वो आपके बाद अगर अमीर बनेंगे तो अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तारीखी किताबों में ये वाकया मौजूद है, तारीखी किताबों में ये वाकया मौजूद है। तो यजीद
पहले से सवाल हो चुका था। अमीर आदमी ने बाकायदा मेंबर पर खड़े होकर जिन्हें खुतबे में इसका ऐलान किया था और अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह जो लोगों ने फैसला किया अगर ये फैसला गलत है तो हमारी जिंदगी में इस फैसले को पूरी करने की तौफीक अता फरमा। बहरहाल जब उनका इंतकाल हुआ तो यजीद जो थे वो अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा बन गए। और उसके बाद जो शिया थे वो जानते थे कि चूंकि ये यजीद भी बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ताकतवर है, अगर इनको पता चल गया कि हम लोग खुशियां मना रहे हैं आज के दिन तो वो हमारा समर्थन कर सकते हैं, हमको बदल सकते हैं, हमको जेल में डाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुशी तो मनाएं लेकिन चोरी छुपे मनाएं, घर के अंदर के कमरे में हम लोग खुला खुली रखें, एक दूसरे को खुला खिलाएं, बाहर लेकर आए जिससे कि लोगों को पता न चले कि हम लोग खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हुकूमत पर चल गया तो हमको सजा हो सकती है। आज भी शियों की जंतरी जो छुट्टी है इसमें 22 रजब को यौम हलाकत माविया लिखा जाता है। अगर शियों की जंतरी किसी को मिल सके तो उसमें देखे 22 रजब को लिखा होगा यौम हलाकत माविया। इसके अलावा लाहौर पाकिस्तान में एक शियों का मदरसा है जो हर साल कैलेंडर छापता है। इसमें 2 रंग का इस्तेमाल होता है, जहाँ गमी के दिन होते हैं उनको काले रंग से रंग दिया जाता है और जो खुशी के दिन होते हैं उनको सूख रंग से रंग देते हैं। इस कैलेंडर में 22 रजब सूख रंग का इस्तेमाल हुआ है और लिखा है मरगे माविया। मरगे माविया ये फारसी का लफ्ज है, यानी माविया की मौत का दिन। इन तमाम बातों को जानने के बाद ये मालूम हुआ कि 22 रजब इमाम जाफर सादिक की ना पैदाइश का दिन है और ना वफात का दिन है और ना उन्होंने उसको बनाने का हुक्म दिया है। एक झूठी कहानी गढ़ कर उनकी तरफ मंसूब कर दी गई है। हाँ, ये दिन शियों की खुशी का दिन जरूर है और वो 60 हिजरी से लेकर आज तक वो लोग इस दिन को खुशी का दिन मनाते आ रहे हैं। फिर 1906 से एक कहानी इमाम जाफर सादिक के नाम से गढ़कर सुन्नी को भी हलवा पूरी टिकिया बनाने पर लगा दिया गया। अगर शिया सुन्नी से कहते कि आप भी हमारी तरह 22 जब खुशी का दिन मनाए तो कतई न मनाते, तो छोटी कहानी कर करके उन्होंने इसको सुन्नी में राज कर दिया और सुन्नी से कहा कि आप लोग भी इस पर हलवा पूरी टिकिया बनाए और जो कमजोरी मान के लोग थे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जबकि ये शरीयत जैसे कि मैंने बताया कि जब कुरान की आखिरी आयत नाज़िल हुई थी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने खुद मुहर लगा दी कि मैंने तुम्हारे दिन को आज मुकम्मल कर दिया है। जब वो मुकम्मल दिन हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में थे, 10 हिजरी का मामला था। उसके बाद कोई अहकाम दिन नाज़िल नहीं हुआ है। अब उस आयत के नाज़िल होने के बाद न कोई इस शरीयत में से कोई कमी कर सकता है न कोई उसमें इजाफा कर सकता है। फिर कैसे मुमकिन है कि 80 हिजरी यानी 10 हिजरी में ये आयत नाज़िल हुई, 80 हिजरी में इमाम जाफर सादिक की पैदाइश है, फिर उनके नाम पर कोई कहानी कही जाए उसको शरीयत बना करके इस्लाम में दाखिल कर दिया जाए, ये किसी को अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी तो किसी सहाबी को नहीं थी, किसी बुज़ुर्ग आज़िम को नहीं थी कि वो नबी की वफात के बाद किसी चीज को दीन बना करके दीन में शामिल कर दें। न उन्होंने ऐसा किया, बल्कि वो सब डरते थे। लेकिन इमाम जाफर सादिक ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन उनके नाम पर कुछ लोगों ने बना करके इसको मुसलमानों को दिला दिया है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इस कहानी को अच्छी तरीके से याद कर लें। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जिम्मेदार यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपका गुजरनेट का जो काफी का ग्रुप है उसमें इसको डाला भी जाएगा। इसको आप फिर से सुने, इसके हवालों को सुने, हवालों को याद करें और उसके बाद अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने भाइयों के पास जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं। वो लोग जो अगर कूड़े करते हैं उनको बहुत प्यार से, अदब से, एहतराम से और अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह इनको हिदायत दे, उन तक ये बात को पहुँचाएं कि मेरे भाई 22 रजब को अमीर माविया के वफात का दिन है। ये लोग खुशी का दिन मनाते हैं जो शिया राज़ी हैं, ये हमारा दिन नहीं है। हमारा दिन तो उससे मुकम्मल हो गया जब अल्लाह के नबी रस्म हयात में थे। उसके बाद किसी को पार्टी नहीं है कि 70-80 साल के बाद, 100 साल बाद, 200 साल के बाद कोई कुछ भी दिन में शामिल कर सके। उसे शामिल करेगा तो बिदअत है। शरअ उमूर मुहदसतुहा कुल्लु बिदअतिन जलाला, शरीयत में हर नई बात बिदअत है। बिदअत गुमराही और गुमराही का रास्ता जहन्नम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बिदअत से, इस खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम लोगों को दूसरों तक इस बात को पहुंचाने और अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। वफ़दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौजूद है खुद तारीफ किताब में वो महीना कौन सा था इसका भी कोई हवाला मौजूद नहीं है और महीना तो छोड़ दीजिए, वो साल कौन सा था इसका भी हदीसों में जिक्र नहीं है। हाँ, हदीसों
کہ جو جانکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ہجرت سے 1 سال یا 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہ تاریخ کون سی تھی، وہ مہینہ کون سا تھا، یہ کسی کو علم نہیں ہے. جب کسی کو علم نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں کہ 27 رجب ہی معراج کی رات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر 27 رجب کی ہوتی تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد ہجرت کی ہے، 10 سال مدینہ میں رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز، روزہ، حج، زکات، تمام معاملات، تمام عبادات، عاشورے کا روزہ ہے یا دوسرے عرفہ کا روزہ ہے، ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. تو اللہ کے نبی بتاتے کہ تم کو معراج کی رات کا روزہ بھی رکھنا ہے، یا اس دن کوئی عبادت کرنی ہے، رات کو نماز پڑھنی ہے، دن روزہ رکھنا ہے. کچھ اس طرح سے کچھ بتا کے جاتے اللہ کے نبی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی ہے، کوئی ذکر نہیں کیا ہے. صحابہ 100 سال کا زندہ رہے، کسی ایک صحابی نے معراج کی رات کے تعلق سے نہ کوئی عبادت کی نہ دن میں روزہ رکھا. تو ہم کو بھی اس کام سے بچنا چاہیے. جو کام اللہ کے نبی وسلم نہ بتائیں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. آپ رکھیں گے روزہ لیکن فائدہ نہیں ہوگا، آپ پڑھیں گے نماز لیکن فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے کہ فجر سے کوئی آئے اور کہے کہ میں پوری رات بہت سکون سے سویا ہوں، بہت فریش ہو کر کے میں آیا ہوں، آج میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا، 4 رکعت سنت پڑھوں گا. اگر وہ 4 فرض پڑھتا ہے فجر کی نماز میں تو آپ یقین مانیے کہ وہ نماز سے سے بات جائے گی اور نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام جو نازل کیے ہیں اللہ کے نبی بتا چکے ہیں، اس کو کرنے اور بیچ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے ہی شربا مکلی سے کتاب ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو بہت ایسے نے بتایا ہے تو دوسرے صحابہ کرام نے بتا کے دکھایا ہے. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی